Good morning to everyone. This is the sum we will do in front of your screen. Mrs. ABC Limited has gone into liquidation on 25th June 2018. So this date is important to us. This date is important to us. 1 minute. What is the date? It is 25th June 2018. So this date is important. Certain creditors could not receive payment out of realization of assets and contributions from A-list contributors. मतलब some of the creditors could not be paid from realization of asset, and realization of assets comes in the A list, list A in the statement of affairs. We will be doing the statement of list A, list B, list C list, and all in detail when we will be doing the next sum, where we will discuss the statement of affairs. The following are the details of certain transfers which took place in the year ended 31st March 2018. There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 shareholders. P 4000, Q 3000 shares, R 2400, S 1600, T is 1000. They want to transfer their shares. They want to sell their shares. And when did they sell their share? Date of ceasing to be the member. मतलब उनका ट्रांसफर कब उन्होंने अपना शेयर को ट्रांसफर कर लिया? पी ने 10th मई 25th जून से पहले है, तो इसको तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज जब लिक्विडेशन हुआ तब पी ऑलरेडी अपना membership right, his membership was ended on when the dissolution took place, I mean liquidation took place on 25th June 2018. But Q का membership खत्म हुआ 22 जुलाई को, मतलब 25th जून के बाद लिक्विडेशन प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद क्यू का मेंबरशिप खत्म हुआ, एंड 15th September our membership ended. 14th December S, and 9th of March 2018 T's membership came to an end. So creditors remaining unpaid and outstanding on the date of such transfer. So जब Q का, देखो P हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज P का जब मेंबरशिप खत्म हुआ तब ऑलरेडी तब ये लिक्विडेशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो दैट वी पी को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो विच ऑल मेंबर्स वी विल कंसिडर? क्यू आर एस टी, बिकॉज दीज all the transfer took place after the liquidation procedure started. So after 25th June 22 जुलाई आता है, फिर 15th September, 14th December, 9th March 2018. 1 minute. Here there is a mistake. In the question itself, there is a mistake in the textbook. It is not 2018, it is 2017. So this mistake was there in the textbook itself. So I have just corrected it. It is not 25th June 2018, it is 25th June 2017. So I have rectified the mistake which was there in the textbook. So 25th June 2017. So abhi let us start. All the shares are of ₹10 each, ₹8 per share paid up. सो 10 रुपीज का शेयर है, बट मेंबर्स ने 8 ही पे किया है, 2 पे करना उनको बाकी है. सो शो द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम द पर्सन लिस्टेड अबाउ, दैट इज PQRST. इग्नोर रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर एंड अदर एक्सपेंसेस. दिस इज द सेम टाइप ऑफ सम which we have already done last lecture.
So here, but what we will be doing, here only the numbers are different, but the steps what we will be following will be the same. So statement of liabilities of B list contributories. Contributories. 1 minute. Contributories. So what we will do, we will start with the, we will have to insert column shareholder के लिए, फिर we want the number of shares transferred, maximum liability, and then how many payments, 1 2 3 4. तो कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. So यहाँ पे let us start because this table also takes time in the PC, more in the PC. Shareholder, यहाँ पे मैं P को इन्वॉल्व नहीं करूँगी बिकॉज P जो है was the shareholder before the liquidation procedure. Number of shares transferred. Then we have maximum liability. Maximum liability 10 rupees का शेयर है, and you know shareholders have a limited liability till the extent of the face value of their share. मतलब शेयर होल्डर को कितना लाइबिलिटी, शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कितना होता है, जितना शेयर का वैल्यू है उतना ही उनको घर से लेके आना है, उससे ज़्यादा नहीं. तो यहाँ पे उनका लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ का शेयर है एंड द शेयर इज ₹8 पेड अप. मतलब अभी भी शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कितना है, ₹2 अप टू ₹2 है, ₹2 तक उनका लाइबिलिटी है, अप टू ₹2, अप टू ₹2 पर शेयर, अप टू ₹2 per share. So here up to ₹2 per share. While 1 minute, up to ₹2, let me write 2 per share. एंड इसके बाद हमें क्या चाहिए, डिविजन ऑफ लाइबिलिटी हमें करना है. सो उसके लिए आई विल गो, बिकॉज मुझे मर्ज करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मर्ज दिस सेल्स एंड देन हियर इवन दिस 2 हैज टू बी मर्ज्ड. तो मतलब ये सबको भी मर्ज कर देती हूँ बिकॉज ये मैंने जैसे आपको बताया, टू मेक दिस column is difficult because it's time consuming and what we are lacking is time. 1 minute, Control Z. So यहाँ पे ये दो कॉलम को मुझे करना है. Let's see, merge. Why is not? 1 minute, again I will try. अच्छा नहीं. So here let it be, no problem. So here what we will do, हमें चाहिए division of liability, division of liability as on, और ये लास्ट वाला हमें जो चाहिए थे टोटल. So total. Okay. So here what are the dates? कौन सा डेट दिया है जरा देखो वो डेट. लेकिन मुझे पी का नहीं चाहिए बिकॉज पी का डेट जो है इट इज बिफोर द लिक्विडेशन प्रोसीजर. सो 15/9/2017 आर का है, फिर 14/12/2017, फिर next one which is the last one is what is the date, 9/3/2018. So here, okay, so okay, so now done. Now I will try to merge if I am able to do that.
ओके, सो लेट इट बी। तो यहाँ पे कौन कौन से शेयर होल्डर्स है? क्यू आर एस टी, उनका शेयर्स कितना है? क्यू का 3000, 2400, आर का 1600 एंड 1000, 1600 एंड 1000. Then we have what is the maximum liability? हर शेयर के ऊपर 2 रुपीज, हर शेयर के ऊपर मैक्सिमम 2 रुपीज पे करना है। तो 3000 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, 2400 इंटू 2 4800, 1600 इंटू 2 ये मैक्सिमम लाइबिलिटीज है। फिर 2000 कैसे 1000 इंटू 2, अब इसके आगे हमें जाना है तो वी विल हैव टू go to the working note. So let us go to the working note now. Working note, तो working note में हमें again we want to prepare the columns, that is date चाहिए, cumulative increase in liability, ratio of number of share held by the members. So सबसे पहले we want date, we want क्यूमुलेटिव, ये जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमें देखना है। फिर वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट में कितना इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है वो हमें देखना है। और इसके बाद लास्ट में हमें रेशो चाहिए, रेशो इज रिक्वायर्ड। फिर व्हाट इज द रेशो वी वांट टू सी? सो लेट अस सी द रेशो, ratio of number of shares. So let us see that. Ratio of number of shares. So here what we will do, dates दिया है, डेट्स इधर ऊपर ही लिखा है हमने, 22/7/17, फिर 15/9/17, फिर 14/12/17, फिर 9/3/18. These are the dates. फिर let us see what are the एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्यूमुलेटिव है, जो भी एक्सपेंसेस है हमें वो चाहिए। तो आई विल कॉपी इट, मुझे पी का नहीं चाहिए, जो एक्सपेंसेस चाहिए मुझे सिर्फ क्यू आर एंड एस का चाहिए। सो आई विल राइट हियर, पेस्ट हियर, 1 minute. So here 1 minute. So here 1 minute. So here हमें चाहिए, we have done. तो ये क्यूमुलेटिव है। अभी हमें देखना है कि इसमें इंक्रीज ऑन लाइबिलिटी कितना है। तो ये 12,000 में कोई इंक्रीज नहीं है, और 12,000 से 13,500 हुआ तो कितना इंक्रीज है? 1,500 का। लाइबिलिटी में इंक्रीज कितना है हमें वो देखना है, 12,000। सो कितना इंक्रीज हुआ, दैट वी हैव वांट टू सी, 1,500 का। फिर सेम 13,500 से 14,000 हो गया। सो हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? 500 ना। सो ये कैसे मिला? 14,000 हो गया किससे? 13,500 से। किससे? 13,500 से। सो दैट इज अ इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी में इंक्रीज है 500 का। फिर इसके बाद लास्ट में 14,000 से इंक्रीज 200 का हो गया। सो कितना इंक्रीज हो गया? 14,000 से 14,000 से 14,200 का हो गया। मीन्स इट्स अ इंक्रीज ऑफ 200 इन द लाइबिलिटी।
So now we want the ratio of number of shares. Ratio of number of shares. तो क्या रेशो है? 3000 शेयर है, 2400 शेयर है, 1600 शेयर है और 1000 का शेयर है. तो इसका रेशो कितना होगा? अगर हम जीरोस कम कर देंगे, कितना जीरो कम कर सकते हैं? 2 ही जीरो कम कर सकते हैं हम, बिकॉज कॉमन सिर्फ 2 ही जीरो है. तो वो दो जीरोस कम कर दो, 2 जीरोस कम कर दो, 2 जीरोस कम करेंगे तो हो जाएगा. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम ये नंबर ऑफ शेयर्स का भी रेशो निकाल सकते हैं, या तो हम ये जो इंटू 2 करके आए उसका भी रेशो निकाल सकते हैं. मैक्सिमम लाइबिलिटी, यू विल गेट द सेम आंसर. आप इसका रेशो निकालोगे ना यहाँ पे, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा. आप इसका नंबर ऑफ शेयर्स का रेशो निकालोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा. सो इट इज अप टू यू. आपको यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स का रेशियो निकालोगे तो भी आपको सेम आएगा. आप ये मैक्सिमम लाइबिलिटी हमने कैसे निकाला? वही शेयर को इंटू 2 करके. तो इट इज द रेशियो विल कम द सेम ओनली. इसको कम करने पे भी सेम आंसर आएगा, इसको कम करने पे भी सेम आंसर आएगा. तो आप दोनों में से कोई भी लो, नो प्रॉब्लम. बट बिकॉज यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बोला तो मैंने ये लिया. अगर आप ये मैक्सिमम लाइबिलिटी लोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा. कम होके आंसर इसी में कम होके यही रेशियो आएगा. इसको भी कम करोगे तो यही आएगा. करेक्ट. इसके बाद व्हाट इज, और छोटा कर सकते हैं बट आई डोंट वांट टू मेक इट मोर स्मॉल. तो इसके बाद हम क्या करते हैं? अभी इसके बाद ये 22/7 का बात है, 22/7 2017. इसके बाद 15/9 को जो मिस्टर क्यू था उसका तो मेंबरशिप खत्म हो गया. तो अभी कौन सा रेशियो यूज करेंगे? बचा हुआ, दैट इज 24/16:10. फिर जब हम 14 दिसंबर में आएंगे तो आर का भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा SNT. एंड लास्ट में जब आएंगे दैट इज मार्च में, तो ओनली टी का लाइबिलिटी बचा हुआ है, तो सिर्फ टी को देंगे. जो भी बचेगा सिर्फ टी को देंगे. तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इधर क्या लिखना है? मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है? सबसे पहले मैक्सिमम लाइबिलिटी है 12,000. सो ये 12,000 को हमें ये रेशो में डिवाइड करना है बिटवीन क्यू आर एंड ST. कौन से रेशो में डिवाइड करना है? हमें डिवाइड करना है ये जो रेशो है, देखो 30 into 24 into 16 into 10. तो ये रेशो में डिवाइड करना है. सो डिवाइड करो ये रेशो में. क्या आ जाएगा? 12,000 into 30 अपॉन, सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 30/30 plus 24 plus 16 plus 10. सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 54, 60, 70, 80 बराबर. ये सबको ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? 30/80. 80 कैसे आया? 30 plus 24, 30 plus 24 plus 16 plus 10 is 80. तो यहाँ पे 12,000 को इंटू 30 डिवाइड बाई 80 किया तो हमें कितना आंसर आया? हमें आंसर आया 4,500. फिर सेम वे हमें क्या करना है? 12,000 को आर के रेशो में डिवाइड करना है. आर का रेशो है 24/80. फिर सेम वे इसका आंसर कितना आता है देखो. फिर उसके बाद अगेन 12,000 को इनटू आर का क्या 16/80 करना है. फिर लास्ट में
टी का निकालना है 12,000 इंटू क्या है 10/80। तो क्या आ रहा है, देखो क्या आंसर आ रहा है 4,500, यहाँ पे आएगा 3,600 और यहाँ पे आएगा 2,400 और लास्ट में आएगा 1,500। ये सबको ऐड किया तो 12,000 मिलेगा। तो 4,500, 3,600, 2,400 and 1,500। अब नेक्स्ट, हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? नेक्स्ट आर का जब ले रहे तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेट में कितना हुआ है, मतलब पहले 12,000 था, जब हम 15 सितंबर में आए तो कितना लाइबिलिटी बढ़ चुका था 1,500। फिर हम 14 दिसंबर में आए तो कितना लाइबिलिटी बढ़ चुका था 500। फिर लास्ट में जो है ना वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे कि टी में कितना डिवाइड करना है। तो अभी जब वो 1,500 है, अभी मिस्टर क्यू तो ऑलरेडी उसका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, ही इज नो मोर द ही इज नो मोर द मेंबर, पार्टनरशिप नहीं, दिस इज कंपनी अकाउंट्स। तो उसका तो मेंबरशिप खत्म हो चुका है क्यू का। क्यू जो है उसका मेंबरशिप 22 जुलाई को खत्म हो गया। तो नाउ हु इज लेफ्ट आर एस टी। तो 1,500 को 24:16:10, 24,000 को कौन से रेशो में, सॉरी नॉट 24,000, 1,500 को 24:16:10, दैट इज यू हैव टू क्या करना है यहाँ पे अगेन सेकेंड वन क्या करना है, हमें फिर से डिवाइड करना है, पर क्यू नहीं है अभी, कौन है, आर है, एस है और टी है। तो कौन सा रेशो में डिवाइड करना है, कौन से अमाउंट को, 1,500 को, रेशो क्या है 24 डिवाइड बाई 50। 50 कैसे आया, 24 + 16 + 10, सो इनटू, सो यहाँ पे 1,500 इंटू 16 डिवाइड बाई 50। और जो लास्ट का है वो कैसे करेंगे, 1,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 50। क्या आंसर आ रहा है देखो, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, गिव द आंसर। क्या आंसर है 1,500 इंटू 24 डिवाइड बाई 50। आई एम गेटिंग 720। आर यू ऑल्सो गेटिंग 720? 720 आ रहा है, चेक करो वेदर यू आर गेटिंग दिस अमाउंट। फिर उसके बाद अगेन 1,500 को 16/50 में कितना आता है देखो, आंसर दो मुझे, हाउ मच यू आर गेटिंग, 480 आ रहा है। फिर लास्ट में हाउ मच यू विल गेट, लास्ट में क्या आंसर आ रहा है, वी आर गेटिंग 300। लास्ट में वी आर गेटिंग 300, वी आर गेटिंग 300, सो विल राइट हियर 300। तो इधर लिखो क्यू का तो मेंबरशिप खत्म हो गया है, तो 720 + 480 लास्ट का 300। सो अभी बचा लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाला जो है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट वाला, तो ये जो सेकेंड लास्ट वाला है तभी आर का भी मेंबरशिप खत्म हो गया, यानी एस एन टी है। तो एस एन टी को 500 16:10 रेशो में डिवाइड करो। तो 16:10 में डिवाइड करेंगे 500 को, तो 500 इंटू 16 डिवाइड बाई 26 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 307.69, 307.69 ऐसा आता, 0.6 है तो इसको 308 करना पड़ेगा। इफ यू वांट ये भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एस एंड टी है,
सिर्फ एस एंड टी है, इनमें डिवाइड करना है। अमाउंट क्या है 500 इंटू, रेशो क्या है 16/26, एंड सेम वे 500 इंटू 10 डिवाइड बाई 26। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 307। क्या आंसर आ रहा है 307.692 ऐसा आ रहा है। तो मुझे पॉइंट हटाना है, तो 0.5 मतलब ये 308 हो जाएगा। सेम वे नाउ व्हाट आई वांट टू डू, लास्ट वाले का कितना आ रहा है वो भी देखो। लास्ट वाले का कितना आ रहा है, हाउ मच आर वी गेटिंग फॉर द लास्ट वन, जस्ट डू इट। So how much answer? Give me the answer. How much answer you are getting? 192.30 ऐसे आ रहे, 192.307 ऐसा आ रहा है। 0.3 है, मतलब डेसिमल इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने पे 500 होता है। सो 192 ऐड करने पे 500। अभी यहाँ पे टोटल निकालेंगे, 4500, फिर 3600 प्लस 720, ये हो जाता है 4320, फिर लास्ट वाला 2400 प्लस 480 प्लस 308, ये होता है 3188। अब लास्ट वाला है ना, यहाँ पे ऐड करते कितना होता है, लिखना नहीं है। 1500 प्लस 300 प्लस 192, ये होता है, इनको ऐड करने पे होता है 1992, ये 1992। और मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है, मैक्सिमम लाइबिलिटी है टू, सब देखो इधर मैक्सिमम लाइबिलिटी 6000 था, बट कितना किया हमने 4500, फिर इधर 4800 था, फिर हमने कितना किया है 3006, सॉरी हमने कितना 4800 से कम है, मतलब यहाँ जितना इधर मैक्सिमम लाइबिलिटी है हम उससे कम ही अमाउंट पे, उतना मैक्सिमम उतना या उससे कम उतना ही पे कर सकते। तो 6000 में 4500 इज ओके, 4800 का लाइबिलिटी था 4320 पे किया ओके, 3200 का लाइबिलिटी था 3188 पे किया ओके। यहाँ पे सबको ऐड करने पे 1992 आता है, और मैक्सिमम लाइबिलिटी इज ऑफ 2000, मैक्सिमम लाइबिलिटी इज ऑफ 2000। तो कितना यहाँ पे कम पड़ रहा है, जो सिर्फ टी को देंगे, जरा देखो 2000 से 1992 माइनस करो, यू विल गेट 8। तो ये 8 को ऐड करने से यहाँ पे 2000 हो जाएगा। तो ये कैसे मिला, ये 2000 माइनस 1992 करने पे ये हमें 8 रुपीज मिला। तो यहाँ पे टोटल कितना है 8 रुपीज। ये तुम लोग को समझाने के लिए मैंने ऐसे इधर लिखा था कि ये 8 कैसे आया। तो इधर ये सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट दिस, सबको ऐड करो, वी विल गेट 14008, और ये सबको ऐड करने पे 8000, ये सबको ऐड करने पे 16000। सो यहाँ चाहिए, तो ये 8 कैसे आया, ये 8 कैसे आया हमें, क्योंकि जो टी है मिस्टर टी, टीज मैक्सिमम लाइबिलिटी is ₹2000, therefore कितना 2000 माइनस 1992 रुपीस, therefore ₹8
is payable by T on 9/3/2018 रुपीज की, उससे ज्यादा। लेकिन तुम लोग क्या बोलोगे, टी को तो पे यहाँ पे देखा जाए तो टी को 200 तक पे करना था। अगर टी को देखा जाए तो उसको 200 पे करना था, 200। समझ में आ रहा है इधर? तो यहाँ पे देखो टी को कितना पे करना था, ओनली टी में 200 उसको पे करना था, 200। बट उसने कितना, उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी 2000 है। तो इन द कंपनी the members will not pay more than their liability of share। मतलब जितना उनका शेयर का बैलेंस अमाउंट है वो लोग मैक्सिमम उतना ही पे करेंगे, उससे ज्यादा उनको उनको कुछ और पे करने की जरूरत नहीं। ऑल नो ना, इन पार्टनरशिप सोल ट्रेडिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, जितना शेयर का अनपेड पोर्शन होगा दे विल पे ओनली दैट, शेयर होल्डर विल पे ओनली दैट मच, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए 2000 ही उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी है, तो हमने 200 पूरा नहीं पे किया, सिर्फ 8 रुपीज उसने पे किया। किसने पे किया? टी ने पे किया कंपनी को। ये क्योंकि 6000 का लाइबिलिटी था, क्यू ने से 4500 पे किया, आर ने 4320, एस ने 3188 और टी ने पूरा 2000 जितना था उतना पे किया। विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।